जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपॉलॉजीज फॉर द स्लाइट डिले एट द स्टार्ट। हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ अटेंडीज आ जाएं, बट नाउ दैट वी हैव अबाउट 39 अटेंडीज आई थिंक वी कैन फॉर्मली बिगिन। शुरू करना चाहूँगी पहले तो अपने इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम इज़ आसमा मलिक, आई एम द हेड ऑफ लिस्टिंग हियर एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. Along with me, I have Ms. Sitra Abbasi, who is also with me and working as part of the listing department. And along with me is Anand Kumar, who is representing IT, and shall be very shortly giving you a demo on our EIPO system. Secondly, I would like to thank you all for your time. Thank you very much. आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज, आप लोगों ने अपने बहुत कीमती वक्त से टाइम स्पेयर किया और इस सेशन को आप अटेंड करें, तो थैंक यू वेरी मच. अब मैं आपको पर्पस बताती चलूं कि ये वेबिनार रखने का हमारा मकसद क्या था. व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज ज़ूम सेशन. प्राइमरीली हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने EIPO सोल्यूशन का. वी वुड लाइक टू टेल यू हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द EIPO सोल्यूशन व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड बाय CDC and what are the features of our own EIPO solution. And once I'm done, basically timing भी बहुत important है. Octopus का IPO is on 16th and 17th. That is their public subscription period. तो हमें लगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने EIPO सोल्यूशन को इस वक्त प्रमोट करें, आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस दें कि आप लोग किस तरह विदाउट एनी हैसल विद अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस हमारा EIPO सोल्यूशन यूज करके ऑक्टोपस के IPO में और इंशाल्लाह जो आगे और हमारे IPOs आएंगे उनके अंदर आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पहले तो वेरी ब्रॉडली आप लोगों को बताती चलूं कि CDC जो EIPO सोल्यूशन ऑफर कर रहा है और जो हम EIPO सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं, हमें प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं. CDC के EIPO सोल्यूशन के अंदर दो की फीचर्स हैं. नंबर वन, वो इन्वेस्टर्स यानी आप लोगों को अलाउ करते हैं टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड टू सब्सक्राइब टू an IPO electronically. Number two, you can register yourself electronically and you can authorize your broker to file an application and pay on your behalf. One second. Farooq sir, I'm on call. Okay. Thank you. Thanks. अच्छा, दूसरा हम हाईलाइट कर दें कि PSX EIPO सोल्यूशन क्या चीजें ब्रॉडली ऑफर करता है एंड हाउ आवर सोल्यूशन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ CDC solution. So with our EIPO solution, you can not only register yourself, file an EIPO application online and make an electronic payment. You can, number two, you can also authorize your broker to file an EIPO application and to make payment online. And third and fourth, जो कि most important differences हैं वो ये हैं कि you can now authorize your broker to go online and do everything for you. Yani not just filing an EIPO application, but even creation of your EIPO account. So they can actually, your broker with whom you have a sub account can actually register you, and on your behalf, once you've authorized him, can actually register you, can actually file an EIPO application for you and can actually make e-payment on your behalf. That's a very important feature. और एक और बहुत important feature है कि आपका बैंक, if it is also a banker to the issue, you can go up to him and your bank can actually register you and can file an EIPO application for you and can make payment on your behalf. थोड़ा आपको पीछे लेके चलती हूँ. हाँ, ये बताती चलूँ कि हमने अपना EIPO solution launch कब किया था. This EIPO system was launched back on 12th and 13th of April for the IPO of Service Global Footwear Limited. और उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हम ये देख रहे हैं कि from Service Global till now we've had about 4 IPOs. और with every IPO that we have हमें हमारा जो results होते हैं वो improvement की तरफ जा रहे हैं. So the EIPO page का link is simple. It's eipo.psx.com.pk. Even now you can go online and you can access this page. You can register yourself over there. आपकी ईज के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपने किस तरह अपने आप को रजिस्टर करना है, आपने किस तरह एक IPO के अंदर पार्टिसिपेट करना है इलेक्ट्रॉनिकली. एक उर्दू के अंदर एक ट्यूटोरियल भी बना दिया गया है जो कि हमारे EIPO पेज पर आप व्यू कर सकते हैं. अभी आपको EIPO पेज का एक स्नैपशॉट UAT एनवायरनमेंट में नजर आ रहा है. आप देख सकते हैं कि इट इज मार्केटिंग ऑक्टोपस डिजिटल, वो आपको 40.06 बता रहा है. दैट इज द स्ट्राइक प्राइस दैट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग पीरियड. यानी इस प्राइस पर आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन पीरियड के अंदर IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं.
और नीचे आप देख रहे होंगे आपको सब्सक्रिप्शन पीरियड, वी विल हैव इट अमेंडेड, द एग्जैक्ट डेट्स आर 16th and 17th। ये चूंकि यूएटी एनवायरनमेंट में है और चूंकि अभी आपको एक डेमो दिखाना था, तो ये वाली डेट्स आ रही हैं। ट्यूटोरियल आप व्यू कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन वॉच ट्यूटोरियल, और हमने एक यूजर गाइड भी बनाई हुई है, बहुत एक डिटेल, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव यूजर गाइड है जो कि हर एस्पेक्ट पर रोशनी डालती है। एज एन इन्वेस्टर, हाउ यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड हाउ यू कैन सब्सक्राइब टू एन आईपीओ एप्लीकेशन, how you, once you have registered, can authorize your broker to file an eIPO application on your behalf and make payment on your behalf. And thirdly, even for brokers के वो किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं and subsequently अपने clients को यहाँ पर रजिस्टर करवा के उनके behalf पे applications file कर सकते हैं. And similarly, similar cases for a bank, what a bank needs to do in order to register their bank account holders and to file eIPO applications on behalf of their clients. ब्रीफली अब हम डेमो की तरफ चलेंगे। मैं आउटलाइन कर दूं कि हम इस डेमो में आपको दिखा क्या रहे होंगे। हम इस डेमो के अंदर यू बीइंग रिटेल इन्वेस्टर्स, हम आप लोगों को दिखा रहे होंगे कि आप लोग किस तरीके से अपने आप के लिए एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन। वी विल शो यू हाउ इट इज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, हाउ इट इज not time consuming at all, extremely easy process, will take you less than a minute to do so. So we will be outlining to you the registration process. That's one. Next, we will be highlighting to you कि जब अच्छा एक और चीज, registration आप any time during the year कर सकते हैं, 24/7, 365 days a year, any time, and it is free of cost. यानी आपको the exchange will not be charging the investor anything when it is coming online and creating an account and using its eIPO solution. नंबर 2, हम आपको आज दिखाएंगे कि जब एक आईपीओ आया हुआ होगा, उसका पब्लिक सब्सक्रिप्शन पीरियड ओपन होगा, तो आप किस तरीके से ऑनलाइन जाकर आप इलेक्ट्रॉनिकली आईपीओ एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हम आपको दिखाएंगे, दैट्स पॉइंट 3, आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं अपने आईपीओ एप्लीकेशन के लिए। ये 3 कोर फीचर्स हैं जो हम हाईलाइट करेंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बता देंगे कि अगर आपने एट एनी पॉइंट इन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी की हुई है और आईपीओ पीरियड आ रहा है, मे बी यूर ऑक्यूपाइड, मे बी यू डोंट हैव टाइम, मे बी यू हैव अदर कमिटमेंट्स, तो आप किस तरीके से अपने ब्रोकर को ऑथराइज कर सकते हैं या टू बेसिकली फाइल एन eIPO एप्लीकेशन ऑन योर बिहाफ एंड मेक पेमेंट ऑन योर बिहाफ। ठीक है, सबसे पहले वी विल बी शोइंग यू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आप ऊपर नेविगेशन बार के अंदर eIPO देख रहे होंगे, यू गो अप टू दैट और आप उसके ऊपर क्लिक करें। नीचे आप देख सकते हैं एक रजिस्टर लिखा रहा है और एक लॉगिन। अगर आप एक जाहिर न्यू यूजर हैं, आप एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आप सिंपली अपने डिटेल्स इसके अंदर फिल आउट कर देंगे। तो अभी हम रैंडमली इनपुट कर रहे हैं और एक यूजर को अभी हम क्रिएट करेंगे। ईमेल एंटर कर दें, एड्रेस एंटर कर लें, सिटी, CNIC आप नीचे एंटर कर लें। आप अपना उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर एंटर कर लें। मोबाइल नंबर के बाद आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक कर दें। इफ यू वुड लाइक टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस, प्लीज फील फ्री टू डू सो। और उसके बाद आप चेक करके आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सेल फोन पर जो आपने एंटर किया होगा उस पर आपको एक OTP आएगा और वो OTP 4 डिजिट OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। Once you've entered that, आप verify पे क्लिक कर दें and you're there, so you've done the first step. आपके registered email address, यानी जो email address आपने enter किया होगा at the time of registration, उसके ऊपर आपको एक लिंक आ जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करें और लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट का पासवर्ड खुद सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, so very simple process you have now, once you've done that, you've created your account, your account is now activated. उसके बाद आप IPO period के अंदर, now you have to come, this is part 2, how can you file an eIPO application online। आप आए, अपना user ID लिखें और अपना पासवर्ड लिखें, कैप्चा लिखें जो कि नीचे entered है और आप लॉगिन पे क्लिक कर लें। ये स्क्रीन होगी जो कि आपको नजर आती है। At the topmost part, you can see a disclaimer. Please do read it prior to filing any IPO application online.
अब हम आपको दिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल आप ऑक्टोपस के आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वेयर डू यू नीड टू गो। आप देख रहे होंगे इफ यू जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड कम टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, आपको वो आईपीओस नजर आ रहे होंगे जो कि इन प्रोग्रेस हैं। तो आप ऑक्टोपस का नाम देख सकते हैं, यू कैन क्लिक ऑन इट और ऑक्टोपस की बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, यानी आपको सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट और सब्सक्रिप्शन पीरियड की एंड डेट नजर आ रही होगी, आपको सिंबल नजर आ रहा होगा और आपको रेट इज बेसिकली द प्राइस व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग पीरियड और जिस पर बेसिकली आप सब्सक्रिप्शन कर रहे होंगे। ऊपर आपको थोड़ा अगर आप स्क्रॉल अप करें तो सब्सक्राइब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। बहुत सिंपल वे है टू सब्सक्राइब टू एन इशू। 3 ऑप्शंस आप देख सकते हैं आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। इफ यू ऑलरेडी हैव अ सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट नंबर, यू सिलेक्ट दैट। थोड़ा नीचे हम सिंपली फील्ड्स दिखा देते हैं। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे अपना सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट नंबर लिखना है और उसके बाद आपने whatever quantity you would like to subscribe to, for example if it's 500 shares or 1000 shares or 1500 shares, whatever the quantity may be in lots of 500, आप वो एंटर करें और आप सबमिट पे क्लिक कर दें। नंबर 2 जो आप चेक बॉक्स देख रहे हैं, दैट इज फॉर सीडीसी पार्टिसिपेंट अकाउंट। ये आप तब सेलेक्ट करेंगे अगर आपका अकाउंट एक ब्रोकर के पास ऑलरेडी खुला हुआ है। आप अपना सीडीसी सब अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, आप अपने पार्टिसिपेंट यानी आप अपने ब्रोकर का नाम एंटर करेंगे और नीचे आप सब्सक्रिप्शन क्वांटिटी आराम से एंटर कर सकते हैं और सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। लास्ट आप ऊपर देख रहे होंगे फैसिलिटेशन अकाउंट। फैसिलिटेशन अकाउंट एक ऐसी बेसिकली फैसिलिटी या हम ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टू एन इन्वेस्टर जिसके पास ना एक सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट है ना एक सीडीसी सब अकाउंट है विद द ब्रोकर। यानी इफ यू हैव नो अकाउंट व्हाटसोएवर, नो सीडीएस अकाउंट व्हाटसोएवर, तो आप एक फैसिलिटेशन अकाउंट पे क्लिक करें। What is a facilitation account and how will it help you? Basically, a facilitation account is an account created with CDC where securities are going to be temporarily parked, provided you are a successful investor. Subsequently, after conclusion of the public subscription period, once you are a successful investor, CDC will then formally request you to open up a CDS account so that those securities that have been temporarily parked in the facilitation account may be moved to your actual account which is in your name, जिसको आप अपना your own CDS account. तो simply आप CDC facilitation account select करें, आप नीचे अपनी number of security जो कि आप subscribe to करना चाहते हैं वो enter करें। Let's say हम 1000 लिखकर हम submit कर देते हैं। आप अपनी पिन एंटर करें जो कि आप initially आपको मिली थी on your cell phone number और आप submit कर दें। Once you have submitted, आप देखेंगे कि basically what has happened now is you have filed the application. Your application is through, but you have not made payment. Yani you are halfway through. You have to go the whole way. You've got to make payment now. आप देख सकते हैं कि at the top of the page वही usual details regarding the issuer लिखी हुई हैं। नीचे आपकी amount payable लिखी हुई है। How is that amount determined? This is basically a product of the number of securities that you intend to purchase times the price at which the IPO is happening. In the case of Octopus, that is 40.6. So very simple, 1000 shares आपने in our case उठाने हैं at the rate of 40.6, so that's 40,600 जो कि amount payable है। एक और चीज मैं हाईलाइट करती चलूं कि in our system is basically integrated with OneLink as well as with NIFT. In the IP of Octopus, however, simply हम OneLink का option हमने अभी open किया हुआ है। However, for other IPOs, we typically have 2 ways through which you can make payment. One is OneLink, the other is NIFT. मैं दोनों आपको बताती चलूंगी, लेकिन साथ में disclaimer that during the IPO of Octopus, the only way that you shall be able to make payment will be through OneLink. So OneLink चूंकि option is right now available, I will explain that to you first and then I will move on to NIFT. अच्छा, बहुत सिंपल है। अगर आपने OneLink के थ्रू पेमेंट करनी है, आप इस ग्रीन बॉक्स के आगे कंज्यूमर नंबर अपना लिखा हुआ देख रहे होंगे। ये एक यूनिक कंज्यूमर नंबर है जो कि आपकी एप्लीकेशन के साथ टैग हो चुका है और ये आपकी एप्लीकेशन को डिफरेंशिएट करता है या आपकी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली अपने इंटरनेट बैंकिंग या अपने मोबाइल बैंकिंग या ATM पर जाकर
you've got to basically, just like you make any bill payment, आप as a beneficiary, please select one bill invoice. Subsequent to that, आप ये जो कंज्यूमर नंबर नजर आ रहा है आपको, आप इसको नोट कर लें और आप अपना कंज्यूमर नंबर एंटर कर दें। कंज्यूमर नंबर आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको एक अमाउंट आउटस्टैंडिंग की पेमेंट करने को कहा जाएगा। इन आवर केस दैट्स 40,600। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर दें उस अमाउंट की। एंड वंस यू डन, बेसिकली वंस यू डन इट, यू हैव मेड पेमेंट फॉर योर एप्लीकेशन। सब्सिक्वेंट टू दैट, जब आप हमारे पोर्टल पे दोबारा लॉग इन करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगेंस्ट योर ओन एप्लीकेशन जो पेमेंट स्टेटस आ रहा होगा वो चेंज हो चुका होगा। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो पेमेंट स्टेटस के आगे लिखा आ रहा होता है, आप देख सकते हैं कुछ के आगे लिखा आ रहा है पे नाउ, इसका मतलब है पेमेंट यू हैव टू डू इट। अगर आपने पेमेंट कर ली है तो यू कैन व्यू योर ट्रांजैक्शन और पेमेंट स्टेटस के ऊपर पेड लिखा आ रहा होगा। अपलिफ्ट वाला दिखा रहा है पेमेंट मेथड। अब ओके अच्छा, अब हम आपको दूसरा मेथड भी दिखा देते हैं। मैंने आपको पहला मेथड हाईलाइट कर दिया विच इज दैट ऑफ वन लिंक। सो वेरी सिंपल। और एक और चीज विच आई आल्सो वांटेड टू पॉइंट आउट, फॉर वन लिंक बेसिकली वंस द कंज्यूमर आईडी हैज बीन जनरेटेड, you have to then move on to your internet banking, your mobile banking, and then make payment. NIFT में जो different चीज़ है is you don't have to go anywhere. Simply you have to click on pay through NIFT. वो अभी view नहीं हो रहा है, but inshallah once we have another IPO after Octopus Digital, you will be able to view that. आप pay through NIFT पे click करेंगे, उसके बाद you will be automatically redirected to NIFT's ePay page. जब आप उस पेज पे होंगे तो आपने कुछ नहीं करना, वहाँ पे आपको आपके बैंक अकाउंट नेम मांगा जाएगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा और आपका CNIC मांगा जाएगा। सिंपल 3 things are required. आप उनको एंटर करें। Subsequent to that, once you've entered that, you've got to make payment for the application. OTP मांगेगा, OTP आपके सेल फोन पे आएगा। You just have to enter the OTP and the transaction is going to be processed. So very simple way. अच्छा, एक और चीज जो हम आपको हाईलाइट करते हैं वो है how once you have registered yourself, you can authorize your broker to file an eIPO application on your behalf. आप क्विक लिंक्स पे जाएं और आप माय पार्टिसिपेंट पे चले जाएं। माय पार्टिसिपेंट पे जाके you have to click on add participant. आप जिस भी ब्रोकर को नॉमिनेट करना चाहते हैं या ऑथराइज करना चाहते हैं कि वो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन डाले, आप उनको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लें और सिलेक्शन करने के बाद आप क्लिक कर दें सबमिट पे एंड दैट्स अबाउट इट। आपके ब्रोकर को एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि यू हैव ऑथराइज्ड हिम टू मेक पेमेंट ऑन योर बिहाफ फॉर एन IPO। आप क्विक लिंक्स के अंदर हम आपको दिखा देते हैं। रिसेंट इश्यूज के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी अगर क्लिक करके आपको, अच्छा माय रिक्वेस्ट ओके, जो रिक्वेस्ट आपके बिहाफ से किसी ब्रोकर को गई होगी वो आप माय रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उन रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। अगर आप कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने एंटर की थी तो वो भी आप कर सकते हैं। आप माय प्रोफाइल पे क्लिक करें और माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ रही हैं। एट एनी टाइम यू वांट टू एडिट इट, आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें and you will be able to edit any detail which may have been entered incorrectly apart from your email ID and your cell phone number. ये दो चीजें हैं जो कि आपके अकाउंट को डिफरेंशिएट करती हैं और आपके अकाउंट को आइडेंटिफाई करती हैं। So these things will remain constant. चलें, I think we have shown you the major things. अब हम फ्लोर को क्वेश्चंस के लिए ओपन कर देते हैं। So you can raise your hands and I will request Sidra if she can open your mic and you can ask any question that you may have at this point. जी हुसैन साहब। हुसैन साहब अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं।
मोहम्मद हुसैन साहब, can we move on to the next? Shakil Arfi साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक दो क्वेश्चन है मेरे के, जो जो आपने दिखाया था ODL कुछ करके लिखा हुआ था, उसका क्या मतलब है? और दूसरा ये कि अगर मैंने सपोज के 2000 शेयर को सब्सक्राइब किया है तो आप कैसे उसको अलॉट अलॉट करते हैं? उसकी कोई कैलकुलेशन है क्या है? अच्छा, चले पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ये ODL क्या है? ODL इज बेसिकली द सिंबल, इट्स जस्ट अ शॉर्ट फॉर ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। फिर आ जाते हैं अलॉटमेंट का तरीका। सर देखिए, अलॉटमेंट का तरीका बहुत डिटेल के अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर हम हमेशा पब्लिश करते हैं। प्राइमरीली अगर इशू के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो एक सर्टेन ऑर्डर में चलता है। बेसिकली वी वुड लाइक टू इनकरेज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और स्मॉल शेयर होल्डर्स एट द वेरी स्टार्ट। तो हम लोग पहले 500 जिन जिन इन्वेस्टर्स ने 500 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली होती है, पहले उनको एंटरटेन किया जाता है, उनको केटर किया जाता है, उनको अकोमोडेट किया जाता है। उसके बाद हम 1000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनके ऊपर आते हैं, फिर 1500 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि फॉर डिटेल्ड रीड ऑफ द अलॉटमेंट क्राइटेरिया, प्लीज रीड ऑक्टोपस का प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर ये सब पब्लिश्ड है। आपके फिर भी कोई क्वेरीज होते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी हुसैन साहब, आपको कोई सवाल है तो आप कर लें। अच्छा, मोहम्मद हमजा कह रहे हैं उनका सवाल है। जी हमजा, आप प्लीज सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा, प्लीज आपका माइक ओपन है, आप सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम मैम। सबसे पहले तो मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन चल रही है। आपकी आवाज़ आप मुझे सुन सक रही हैं मैम? जी जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। आई होप आपको जी मेरी मैम, आवाज़ क्लियरली आ रही थैंक है। यू। जी जी मैम, थैंक यू मैम। आपने जो ना हमारे लिए वेबिनार की कंडक्ट की है, काफ़ी हद तक जो ना वो क्लियर हो गई हैं काफ़ी चीज़ें। मैम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं इस फील्ड में हूँ और IPOs वगैरह परचेज कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन अब मैम ये है कि क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज ओवर सब्सक्राइब हो गया है ऑक्टोपस डिजिटल का जो IPO है मैम, अब मेरे पास ये इशू आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर मैं 15,000 की जो है वो बिड लगा उसमें अप्लाई कर देता हूँ 15,000 शेयर्स की, तो मुझे ऑलमोस्ट कितने को शेयर्स मिलेंगे? या मैं उसकी तरफ चला जाऊं या मैं 2000 के लिए सिंपली अप्लाई कर दूं? क्योंकि प्रो राटा बेसिस के ऊपर जो आप के 500 से लेके 2000 शेयर्स तक की जो अप्लाई करते हैं उनको अकोमोडेट आप करते हैं ताकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जा सके। ये तो आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ये गाइड एडवाइस कर ले दें कि रहे अब अगर हैं। मैं एक सेकंड, सॉरी टू कट यू, बट नहीं, दिस इज मोर ऑफ एन वो तो मैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइस एडवाइस एंड नहीं, नॉट अ मैं सिर्फ क्वेश्चन ऑन द IPO सॉल्यूशन। मैं अभी कैन आई इनिशियली ओके। जस्ट टेक, आई एम हियर टू टॉक जी जी अबाउट मैं माय मैं IPO आपका पॉइंट समझ सिस्टम। गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं 2000 के लिए Maybe a अप्लाई good करूँ फिर। person, maybe a good person to answer your question would be your broker or an investment advisor. But मैं आपको simply all that I will say at the ओके moment ओके is even from the market जो vibe मुझे मिल रही है वो यही है कि even in the public subscription period the issue is going to be heavily oversubscribed and we may have to move towards the ballot. This is something that we're hearing. यस मैम, But again, they can be a यस regulators, so मैम, यस मैम। we would not like to comment on, and we cannot give out any investment advice. ओके Maybe your broker will be the right person to ओके, give you an investment advice. Thank you. श्योर मैम, श्योर मैम, श्योर मैम, थैंक यू। Thank you जी। जी फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आसमा फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। मैंने ऑलरेडी जो है एट द टाइम ऑफ एयरलिंक IPO मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था और एट द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड पार्टिसिपेंट्स तो रॉन्गली मैंने एक जो है पार्टिसिपेंट को ऐड कर लिया था अपनी लिस्ट के अंदर, तो मैं उसको दोबारा से डिलीट नहीं कर पाया था। इज देयर एनी ऑप्शन टू डिलीट द ऑलरेडी एडेड पार्टिसिपेंट्स?
Would you like to see, Anand? And just ensure, ठीक है. Can we get back to you? मेरी IT team is with me. They're just looking and we'll let you know if we have this option presently available in our system to delete it. But I believe there should be one. I don't think that this is a very hard-coded thing. Anand, अगर आप screen share करके भी इनको display करके दिखा दें कि किस तरह they can unselect that track holder. This is one thing. This is one thing. We will move to our development team. Okay, this is one thing. We will move to our development team and they'll have a look into it. Thank you for raising this point. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay, इसको देख लेते हैं. जी फरासत साहब, if we can have your mic unmuted. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अस्मा, थैंक यू फॉर दी सेशन. मैं रजिस्टर कर रहा था तो मुझे पासवर्ड नहीं मिल रहा. प्रॉब्ली वो ईमेल होता है बट मुझे ईमेल नहीं मिला. मैं फर्दर लॉगिन नहीं कर पा रहा EIPO के लिए. मैं एक दफा रिपीट कर दूं. आपके सेल फोन पे आपको OTP आएगा और आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो ईमेल ID एंटर की होगी उसके ऊपर आपको एक लिंक आएगा. आपने उस लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड खुद सेट करना है. नहीं, लेकिन वो लिंक नहीं आ रहा. वो आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन बट ईमेल पे नहीं आ रहा. Anyways, I'll try again. Okay, can you just check your spam? आपके inbox से हट के maybe it has gone to trash or junk or to spam. Can you just check that? क्योंकि हमें कई लोगों ने बताया कि वहाँ चला गया था and they had to, you know, a very normal thing. ये check कर लें. Okay. और मुझे सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि ऑक्टोपस का कब है सब्सक्रिप्शन पीरियड? 16th and 17th. यानी today is 15th. Inshallah, it will be open tomorrow and day after. जी. Okay. और मिनिमम साइज उसमें 500 है? जी बिल्कुल. थैंक यू. जी बिल्कुल 500 है. आपको पता होगा कि 24 hours ओपन होता है, यानी 16th and 17th full on. You've got the whole day, the whole night to आप अगर register कर चुके हैं तो to file your application and to payment. Okay. Thank you. Thank you जी. Thank you. जी अशफाक साहब. जी अशफाक साहब. अशफाक साहब, आपको कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलें. चलें, अगर आपका सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं. गुलाम साहब, गुलाम मुर्तजा साहब जी. सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं अभी. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये सेशन अभी चल रहा है या फिर अभी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चल रहा है? Q&A चल रहे हैं. आपको कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री. मेरे पास दो सवाल हैं. एक तो ये है कि कोई क्लाइंट ऑनलाइन इसमें EIPO की वेबसाइट के थ्रू करवाए हमारे थ्रू, और वो चाह रहा है कि भाई उसका ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है या वो निफ्ट में भी उसका ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या कैश जमा कर इनके बैंक में कैश जमा करके IPO सब्सक्राइब कराना चाहे तो करा सकता है, नहीं करा सकता? आप ब्रोकर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं. अच्छा, हमने कल बड़ा एक डिटेल, कल भी प्रायर टू एयरलिंक भी ब्रोकर्स के साथ एक बहुत डिटेल सेशन किया है, और मैंने जैसे कहा कि हम लोगों का सोल्यूशन, वी वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, वी वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स ऑटोमेशन. तो इस सोल्यूशन में वी आर इनकरेजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर एवरी एप्लीकेशन. हाँ, ये ब्रोकर का रोल है. If the broker, let's say, would like to accept a physical instrument and then would like to make electronic payment, अगर broker reluctant है to make electronic payment, तो फिर आप अपने client से ज़रूर कह सकते हैं, but even then the client has to make electronic payment. तो हमारा system is encouraging e-payment.
अगर क्लाइंट के पास ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ना हो तो ये अभी निफ्ट में जैसा ऑप्शन नहीं है, उसमें जो लिमिटेड बैंक्स हैं, तो उस आपके पूछना चाह रहा था। या एक ये ऑप्शन हो सकता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट हो सकती है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। या मिसाल के तौर पे बाप के पास वो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, बेटा अगर करना चाहे तो बेटे के ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दी, ऐसा हो सकता है? जी जी बिल्कुल, किसी मतलब somebody else making payment on behalf of, for example, a father making payment on behalf of his son, correct? Yes. As long, हाँ, बस ये for example, as long as the other person or you share the consumer ID with him, A और B, just remember कि फिर जिस account से payment जाएगी उसी account में refund होगा. That those are the two things that I thought I should be highlighting here. I got it. Yes, thank you जी. सेन साहब काफी देर से आपका हैंड रेज है लेकिन आप सवाल नहीं कर रहे, तो प्लीज यू हैव द फ्लोर. आप माइक अपना अनम्यूट करके सवाल कर लें. Any other questions? We have a few questions on the chat. Can OTP come to a foreign investor? अच्छा बिल्कुल, OTP will be coming to a foreign investor. हमने अपनी SMS services हमने ये ली भी हैं. So we have ensured that even if a foreign investor, be it a Pakistani who is a foreign resident or be it a foreign national, अगर वो registration करना चाहते हैं और वो किसी IPO में participate करना चाहते हैं, तो they can do so. बिल्कुल उनके जो सेल फोन नंबर लिखेंगे उनके इंटरनेशनल सेल फोन नंबर पर OTP आ जाएगा. Okay. जी आपने बिल्कुल ठीक समझा. चूंकि अगर ब्रोकर आपको रजिस्टर कर रहा है और ब्रोकर ने आपकी तमाम डिटेल्स एंटर करनी है, तो ब्रोकर आपकी ईमेल आईडी एज वेल एज योर सेल फोन नंबर एंटर कर रहा होगा. तो जब वो आपका सेल फोन नंबर एंटर करेगा तो OTP विल बी सेंट टू द क्लाइंट्स यानी टू द इन्वेस्टर्स सेल फोन नंबर. बस OTP आप अपने ब्रोकर के साथ शेयर कर लें. Once you have shared that, that's about it. आपके अपने ईमेल पर आपको लिंक आएगा. आप separately, whenever you are home, wherever you are, you can go and you can click on the link and you can set a password for your own account. Very simple. मैम ये एक सवाल ये करना था कि अगर किसी क्लाइंट को फिजिकल शेयर्स अगर सब्सक्राइब करने हो, उसके पास कोई ब्रोकर का अकाउंट ना हो या कुछ हो, कोई इस तरह का कोई ऑप्शन चाहता हो, तो उस सूरत में क्या होगा? मैं आपको बता दूं, देखिए शायद आप अवेयर नहीं है, बट अब तो अंडर द रेगुलेशन शेयर्स कैन ओनली बी इशूड इन बुक एंट्री फॉर्म. यानी अब तो शेयर्स इशू ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं. ओके, बट अगर फिजिकल में शेयर्स अंडर बाय रेगुलेशन यू कैन नॉट इशू फिजिकल शेयर्स नाउ. यू हैव टू इशू इन बुक एंट्री फॉर्म. यानी CDS फॉर्मेट के अंदर, CDS एलिजिबल फॉर्मेट के अंदर ही आप कर सकते हैं. अच्छा, अगर किसी बंदे का किसी का इन्वेस्टर अकाउंट नहीं है, किसी के पास ब्रोकरेज सब अकाउंट नहीं है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा? सर सिंपल, हमने फैसिलिटेशन ही आपको अभी अपने डेमो में दिखाया. ऑल यू गॉट टू डू इज, जब आप रजिस्टर कर लें, जब आप सब्सक्रिप्शन करने लगे तो आप फैसिलिटेशन को सिलेक्ट कर लें. फिर आपने आगे कुछ नहीं करना, आपने सिंपली अपने नंबर ऑफ शेयर्स एंटर करनी एंड यूर थ्रू. अगर ये आप प्रोसेस वगैरह एक दफा दिखा दें क्योंकि मैंने मिस कर दिया ये. हाँ श्योर, नहीं श्योर, व्हाई नॉट. अनंत आप ले चलते हैं हमें, सिर्फ यही वाला प्रोसेस दिखा दें. बिल्कुल ठीक है. हम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फाइलिंग पर अब लेके जा रहे हैं, जहां पर द इन्वेस्टर इज अबाउट टू फाइल एन एप्लीकेशन. However, he does not have any CDS account and he will now be selecting a facilitation account in order to subscribe to an issue to file an application. ये हम आपको भी दिखा देते हैं. पहले लॉगिन करेंगे. उसके बाद आप इशू पे क्लिक कर लें. आप इशू के नीचे हैं, सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें.
आप ये देख रहे हैं 3 ऑप्शंस, आप लास्ट वाले पे क्लिक कर लें, सीडीसी फैसिलिटेशन अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और आप नीचे अपनी क्वांटिटी एंटर कर दें, बी इट 500 शेयर्स, 1000 शेयर्स, और आप उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, राइट। खैर आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, यूर थ्रू। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस है पेमेंट का, वो आई थिंक आप समझ चुके हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। एक कंज्यूमर आईडी जनरेट हो जाएगी। कंज्यूमर आईडी आप नोट डाउन कर लें। आप अपना इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, अगर आपका एचपीएल में अकाउंट है, आप एचपीएल इंटरनेट बैंकिंग पे जाके आप बिल्कुल जैसे रेगुलर आप इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही है। आपने एज ए बेनिफिशियरी आपने 1 बिल इनवॉइस को चूज करना है, सिंपल। और वो फिर ऑटोमेटिकली आपसे आपका कंज्यूमर नंबर मांगेगा, आप कंज्यूमर नंबर एंटर कर दें, वो आपको कहेगा एक्स अमाउंट काइंडली आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर दें, और आप इलेक्ट्रॉनिकली उसकी पेमेंट कर दें, यू आर थ्रू। अच्छा, ये इसका फिर शेयर्स कहाँ पे जाएंगे? अच्छा, मैंने ये बताया फैसिलिटेशन अकाउंट एक अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट खुलता है सीडीसी के अंदर, जिसके अंदर आपकी सिक्योरिटीज पार्क हो जाती हैं। सीडीसी इन्वेस्टमेंट, और जैसे ही इट इज अ टेम्पररी अकाउंट विद सीडीसी, your securities, if you are a successful investor, will be temporarily parked in that account. CDC will, after public subscription period, request you can now kindly proceed, kindly open up an account with CDC so that your securities can be moved from the facilitation account onto your own account. Okay. You are given X number of days to open up that account. आपको एक थोड़ा time provide किया जाएगा, आप अपना account खोल लें, और your securities will then be moved from facilitation account onto your own account. Okay. Thank you. Thank you, जी. जी अशफाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम साहब, ये जो सेकंड ऑप्शन है सीडीसी पार्टिसिपेंट अकाउंट, इसमें हमने अपने ब्रोकर का कोड देना है? जी 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 बिल्कुल। सीडीसी पार्टिसिपेंट अकाउंट के अंदर अपना सब अकाउंट आप एंटर करेंगे। जी बिल्कुल, जो ब्रोकर यानी इफ यू हैव एन अकाउंट विद ब्रोकर। राइट मैडम, एक और बात बता दें कि क्या जिस तरह हम पहले ही अपने बैंक्स के जरिए से करते हैं सब्सक्रिप्शन, वो ऑप्शन अभी है? बैंक के थ्रू करते हैं यूबीएल बैंक, मतलब बैंक यूबीएल के जरिए से फिजिकल एप्लीकेशन नहीं नॉट एट ऑल, वो भी ईआईपीओ है, यूबीएल जो उसकी फैसिलिटी दे रहा है ऑलरेडी, वो हम यूज कर सकते हैं? Yes, there are a few banks जो कि अपने ऑनलाइन बैंकिंग में आप देखे होंगे वो ये ऑप्शन ऑफर करते हैं with different IPOs. There are some banks that are offering that facility, some that don't. लेकिन बिल्कुल अगर एक पर्टिकुलर IPO के अंदर एक सर्टेन बैंक अपना ऑफर कर रहा है, I can check and get back to you कि ऑक्टोपस के केस के अंदर UBL facility or not, लेकिन ये prospectus के cover page पे ही आ रहा होता है, so maybe you can have a look at the prospectus, see the cover page. I'm here to promote my eIPO system, इसलिए अभी मैं अपने IPO system पे बात करूँगी। Right. लेकिन आप prospectus को प्लीज देखें और उसके अंदर आप देख सकते हैं। मैं एक और सवाल है जी, अगर मैं इस पर आता हूँ तो इसके लिए पहले मुझे इस पर रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर सारा प्रोसेस करना है और फिर लिंक करना है, लिंक 1 के जरिए पेमेंट को? मैं 1 लिंक के थ्रू देखिए, रजिस्ट्रेशन आप किसी भी वक्त साल में कर सकते हैं। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यानी अगर लेट्स से आप आज अपने आप को, मैंने जैसे कहा रजिस्ट्रेशन विल टेक यू मे बी अ मिनट और 2, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप आज कर लेते हैं तो फॉर लाइफ योर अकाउंट इज ओपन, यानी नेक्स्ट टाइम आप समझें आप कल परसों जाके आप ऑक्टोपस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेट्स से इन 2-3 वीक्स हमारे पास इंशाल्लाह एक और आईपीओ आ जाएगा, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन रिपीटेडली आपको नहीं करनी। रजिस्ट्रेशन इज अ 1 टाइम प्रोसेस, जैसे मैंने कहा विल टेक अ मिनट और 2 ऑफ योर टाइम, नो मोर। उसके बाद ओनली ड्यूरिंग द IPO period, during a public subscription period, you will be asked to log back in. उसके अंदर मैंने जैसे आपको पता है बहुत ही सिंपल है, आपको मैक्सिमम 2 fields fill out करने हैं, यानी आपको fill out करना है if you have an account with CDC है तो CDC account डाल दें, if you have an account with a broker वो number enter कर दें, if you have neither then kindly enter or choose facilitation account and just select the number of securities that you would like to purchase and then move on to payment. यानी बहुत ही simple, बहुत ही simplified process है, not difficult at all. राइट मैडम, थैंक यू, आपने कांग्रेचुलेशन टू यू। दूसरा ये कि बैंक को लिंक करने का प्रोसेस अगर रिपीट कर दें विद 10 और 15 सेकंड में, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। 1 लिंक पेमेंट की बात 1 लिंक जी, पेमेंट को लिंक करने के लिए पेमेंट की बात करें, ठीक है।
जब आप एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट नहीं है, थोड़ा सा जी पीछे से चल रही हूँ, आपने चूज कर लिया फॉर एग्जांपल फैसिलिटेशन अकाउंट और नीचे आपने एंटर कर दिया कि आपने, लेट्स सपोज आपने 1000 शेयर्स उठाने हैं, आपने 1000 एंटर कर दिया। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन भर दी जा चुकी है, नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू पेमेंट। आप आगे जाएंगे, लिखा क्लियरली आएगा पे थ्रू वन लिंक, और बिल्कुल उसके आगे आपका एक यूनिक कंज्यूमर नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुका होगा। बाय यूनिक कंज्यूमर नंबर वी मीन एक खास नंबर जो कि सिंपली आपको अलॉट हुआ है, हर इन्वेस्टर को एक डिफरेंट नंबर अलॉट होगा। ये आप कौन उस करेगा नंबर मैडम, को, ये नंबर कौन अलॉट करेगा हमें? सर ये सिस्टम जनरेटेड है, और राइट ये सिस्टम जनरेट करता है, और ये नंबर आपकी एप्लीकेशन से टैग्ड होता है या लिंक्ड होता है। यानी इस राइट नंबर के थ्रू दिस नंबर वन लिंक कैन आइडेंटिफाई कि आपको कितनी अमाउंट बेसिकली आउटस्टैंडिंग है आपकी। फिर आपने कुछ राइट नहीं करना, आपके पास लेट्स सपोज निशान में अकाउंट, निशान बैंक में अकाउंट है, आप निशान बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पे जाएं, आप उनके मोबाइल बैंकिंग व्हाटएवर, आप उस पर लॉग इन करें, और लॉग इन पे जिस तरह बिल पेमेंट नहीं करते, आप बिल पेमेंट में जी जाके बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करते हैं, वेदर इट्स के इलेक्ट्रिक और वेदर इट्स वापटा व्हाटएवर इट इज। राइट आपने उसके अंदर इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग एनी अदर बेनिफिशियरी जस्ट सिलेक्ट वन बिल इनवॉइस, ये उसके अंदर एक ऑप्शन होता है। वन आप बिल वन का बिल, बिल्कुल वन बिल इनवॉइस का, अब राइट वन बिल इनवॉइस सिलेक्ट करें, नीचे वो ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि कंज्यूमर नंबर एंटर करते हैं। कंज्यूमर नंबर वही नंबर है जो कि एक सिस्टम जनरेटेड नंबर है, वो आप वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दें। वो आपने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली नीचे वो आपको अमाउंट बता देगा कि ये अमाउंट जो कि आपकी एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है, इसको अमाउंट को आपने पे करना है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर दें। यूर थ्रू, वेरी सिंपल। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस सर। थैंक यू जी। जी शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच मैम अस्मा फॉर डिटेल्ड सेशन। एक दो तीन मेरे तीन सवालात हैं। पहला सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि जब मैंने पहली मरतबा ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खुलवाया था तो दे शेयर टू आईडीज विद मी। एक के आगे लिखा है पार्टिसिपेंट आईडी और दूसरी के आगे लिखा है CDC ID / सब अकाउंट। सो विच आईडी शुड आई इंटर जब ये आप आईपीओ फिल करते हैं? maybe just it's the terminology which at times confuses the people. हाँ जो जी, आपकी participant ID है is not your ID, that is the broker's ID. So ओके that's not your ID. So the word participant in the financial market is linked or tagged or connected with or synonymous to a broker. तो ऑलराइट आप ग्रेट। हाँ ठीक है, तो मैंने so जो the है ना latter is your, दूसरा जो नंबर दिया हुआ है CDC ID या सब अकाउंट, दैट्स माय आईडी एंड दिस शुड बी इंटर्ड। ठीक हो गया सब जी। बाकी account is your ID. ओके ग्रेट। दूसरे दो सवालात हैं मेरे। एक तो ये बताएं कि समटाइम्स हम लोग अपने ब्रोकरेज हाउस के साथ बड़ा कनेक्टेड नहीं होते ना, तो ऑक्टोपस का जो ये आने वाला था आईपीओ, ये तो बड़ी इसको हाइप मिल गई थी। फ्यूचर में अगर और भी आईपीओ आते हैं तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें नोटिफाई किया जाए तो हम पार्टिसिपेट करें एक्टिवली? और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है। थैंक यू, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दे दूं फिर आप बिल्कुल थर्ड श्योर क्वेश्चन पे आइएगा। श्योर। बहुत अच्छा सवाल है। तभी हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग आकर जितना जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर कर लें। क्यों? क्योंकि जब भी आईपीओस आते हैं तो आईपीओस के आने से पहले हम मोबाइल पर मैसेज के थ्रू, SMS के थ्रू अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स को नोटिफाई कर रहे होते हैं कि अपकमिंग ये आईपीओ है और इनकी पब्लिक सब्सक्रिप्शन पीरियड ये होगा। इसलिए आज भी जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको इनकरेज करूंगी कि आप लोग खुद भी अपनी फैमिलीज को भी काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप PES यानी अपने आप को PSX's EIPO सिस्टम पर जाकर रजिस्टर करें, वेरी सिंपल प्रोसेस। और आपको बेनिफिट यही मिल रहा होगा कि जब भी कोई भी अपकमिंग IPO होगा तो यू विल बी नोटिफाइड अबाउट इट, नोटिफाइड रिगार्डिंग इट ऑन योर सेल फोन नंबर्स। दैट्स ग्रेट, ठीक है जी, थैंक यू। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तीसरा सवाल ये है कि ये जो अभी हम आईपीओ कल भरने जा रहे हैं इंशाल्लाह ऑक्टोपस का, तो उसमें इन केस अगर हमें नहीं होता सब्सक्रिप्शन या हो भी जाता, दोनों सूरतों में टाइम कितना लगता है, फिर रिफंड कितने दिनों में हो जाएगा, इस तरह की डिटेल्स, और हमें किस तरह पता चलेगा कि प्रोसेस हो गया? तो वो डायरेक्ट हमें इसी तरह सेल फोन पे कम्युनिकेट किया एक तो जाएगा या फिर? आपका पहला, ओके, आपका पहला सवाल है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इट इज कंक्लूडेड। सॉरी, दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो देखें, द पब्लिक सब्सक्रिप्शन पीरियड कंक्लूड्स आफ्टर 2 days। जो इलेक्ट्रॉनिकली हम रन कर रहे होते हैं तो वो मिडनाइट पे खत्म होगा, यानी 17 सितंबर के मिडनाइट के तक यू हैव टाइम टू गो ऑनलाइन टू फाइल द EIPO एप्लीकेशन एंड टू मेक पेमेंट। वंस यू आर डन, जाहिर है उसके बाद हम हमारे एंड पर
एट द एंड ऑफ अपना जितने हमारे बुक रनर्स होते हैं, रिजल्ट्स जो है इशूअर के एंड पे भी ये कंपाइलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. Typically, the refunding, obviously we find out how many are successful investors, how many are unsuccessful investors. और जो देखने में आया है वो ये है कि, और ये as per regulations भी है कि issuer is provided a 10-day time in which he has to comply with all formalities that are to do that he has to do post public subscription. Typically, however, refunds can take between 3 to 8 days. मैंने from my experience, this is what I have seen in former IPOs. चूंकि ब्रोकर को अपने मतलब रिकॉन करनी होती है ना एट द रजिस्ट्रार एंड, फिजिकल रिजल्ट्स कंपाइल होते हैं जो फिजिकल एप्लीकेशन से आ रहे होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स कंपाइल होते हैं. फॉर एग्जांपल PSX IPO सिस्टम का रिजल्ट कंपाइल होता है, CDC के IPO सिस्टम का रिजल्ट कंपाइल होता है. फिर देखा जाता है कुछ लोग डुप्लीकेट एप्लीकेशंस फाइल कर देते हैं, कुछ एप्लीकेशंस इस प्रोसेस में रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ लोग मिनिमम लॉट साइज का रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते, 500 से कम की एप्लीकेशन डाली भी होती है, तो वो चीज ऐसी एप्लीकेशन स्क्रूटनी के अंदर रिजेक्ट होती हैं. तो देयर इज अ स्क्रूटनी पीरियड एज वेल, देयर इज अ रिजेक्शन पीरियड, देन देयर इज अ कंपाइलेशन पीरियड. Then once you have the tabulated results, they are shared in the market. That those results have to be shared soon after the public subscription period. And from there onwards, the refunding process starts. But to answer your question, it shouldn't take more than 10 days after the public subscription for the entire process to conclude. ये हमारी requirement है, क्योंकि we expect a company to get listed after a 10-day period post the public subscription. ठीक हो गया जी. So nice of you. Thank you very much. One last thing, it's not a question, it's a feedback. कि personal मैं अपना feedback दे रहा हूँ कि you have taken a very great initiative. क्योंकि एक ज़माने से हम इंटरनेट बैंकिंग करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं था. तो आई पर्सनली डिडंट टेक एनी इंटरेस्ट इन IPOs जो 5-6 गुजरे लास्ट के. उसका प्रोसेस बड़ा अजीब सा और लेंदी होता था. एक तो 9 to 5 आवर्स में आपको टाइम निकाल के जाना पड़ता था मैनुअली. तो मैं सिर्फ उसी वजह से, उस फॉर्म्स की वजह से कितने नहीं भरे. बहरहाल चलें. सो नाइस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द फीडबैक. शबी साहब. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी शबी साहब. जी शबी साहब, आपका इंतजार हो रहा है, आप सवाल कर सकते हैं. सॉरी, वो दोबारा म्यूट हो गया था. अच्छा मैम, मेरा वो एक मासूमाना सा और लेट कमर वाला सवाल है. कुछ चीज़ें आपने दोबारा जो है वो रिपीट कर दी हैं, कुछ समझ आ गई हैं, लेकिन ये है कि कुछ मैं असल में कुछ लेट आया था. तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह या कुछ यूट्यूब पर कहीं कुछ मिल जाएगी इसका? जी जी बिल्कुल, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आई विल बी रिक्वेस्टिंग माय मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू काइंडली अपलोड इट. आई बिलीव ये हमारे यूट्यूब पे PSX का अपना चैनल बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी आ जाती हैं. बट आई also request her to make it probably more visible. आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक ट्यूटोरियल हमने अपने EIPO पेज पे अपलोड किया हुआ है. आप प्लीज उसको जाके, उर्दू में है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है जी. आप एक उसको देख लें, बहुत एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है. आई डोंट थिंक इट्स मोर देन a few minutes, तो वो आप चेक कर लें. आपको अगर पढ़ने का शौक है तो हमने एक यूजर गाइड भी बनाया हुआ है, बहुत डिटेल्ड यूजर गाइड है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं और आप उसको देखकर आई होप आपकी क्वेरीज एड्रेस हो जाएंगे. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. जी सफ्तर साहब. हेलो जी सफ्तर साहब. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अच्छा मैम, पूछना ये था, अभी मुझे ये जो मेरा ब्रोकर है उसकी तरफ से मुझे इसकी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि वेबिनार की क्लॉज से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको देखा ही अभी है. तो मैं अभी जब ऑनलाइन हुआ तो आई थिंक सेशन एंड हो चुका था और कसने की बात थी. तो ये अब ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ये जो आपका थ्रू आउट सेशन है, जितना भी आपने यहाँ पे पढ़ाया है, उसको मैं जो है ना वो दोबारा से देख सकूँ कहीं से?
मैंने अभी बताया कि अगर आप सेशन देखना चाहते हैं तो मैं अपने मार्केटिंग से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाए। दूसरा ये कि ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे EIPO पेज पर eipo.tsx.com.pk। यूजर गाइड भी बनी हुई है, बहुत डिटेल्ड यूजर गाइड है, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरीज हो तो आप एक्सचेंज को लिख सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। ITSS के नंबर्स हम हर प्रोस्पेक्टस के अंदर देते हैं, वो भी उस पर भी आप रुजू कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन वेरी शॉर्टली, जस्ट फॉर योर बेनिफिट, मैं रिपीट करती चलूँ, वेरी सिंपल, इट्स अ 2-minute प्रोसेस जो कि रजिस्ट्रेशन का है। कुछ भी नहीं करना आपने ऑनलाइन आना है, आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, लाइक योर नेम, योर एड्रेस, योर ईमेल आईडी, योर सेल फोन नंबर, योर CNIC नंबर, एक्सेट्रा। बेसिक डिटेल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। आप क्लिक करें और आप रजिस्टर पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सेल फोन नंबर पे आपका OTP आ जाएगा। आप अपना OTP एंटर करें। जो ईमेल आईडी आपने एंटर की होगी उसके ऊपर एक लिंक आएगा, एक पासवर्ड सेटिंग लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और जो भी पासवर्ड आप चाहते हैं अपने अकाउंट का आप वो एंटर कर दें और आप अपने अकाउंट का यानी पासवर्ड भी खुद डिटरमिन करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये एक 1 टाइम प्रोसेस है और आप अपनी जिंदगी में आपको एक ही दफा करना है। यू डोंट हैव टू रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन। आई थिंक मेरा पहले भी इस पे अकाउंट है क्योंकि मैं अपने ब्रोकर के पास रजिस्टर्ड हूँ। मैंने इससे पहले ब्रोकर के पास रजिस्टर्ड से मुराद ब्रोकर के पास अकाउंट है या ब्रोकर ने आपको रजिस्टर किया है? हाँ, so brokerage creation of a brokerage account is different from a creation of an account on PES, on PSX's EIPO system. यानी यहाँ पर you have to create a separate account. This is your own account which is going to reflect your activity in the IPO market, or in the general portion of any IPO आपने जो उसमें investment करनी होती है, तो ये this is entirely separate. You will be availing or using this account whenever there is in future there is any IPO in which you would like to participate. तो ये थोड़ा फर्क है as opposed to a brokerage account जो कि आप खुलवाते हैं in order to trade in the secondary market. ये आप खुलवा रहे हैं in order to buy shares in the primary market. CDC something else than EIPO. सिर्फ CDC भी EIPO सोल्यूशन ऑफर कर रहा है, लेकिन मैंने जैसे बताया उनके IPO सोल्यूशन एक लिमिटेड सोल्यूशन है। हमारा सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, उसके ज़्यादा फीचर्स हैं। मैंने जैसे कहा कि उसके अंदर हमारे के अंदर आप जाकर अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकते हैं, खुद एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं, ई-पेमेंट कर सकते हैं, या एक दफ़ा जैसे आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो आप अपने ब्रोकर को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दे, या फ्रॉम स्क्रैच आप अपने ब्रोकर जिसके पास आपका सब अकाउंट है, या फ्रॉम स्क्रैच आप अपने बैंक को अप्रोच कर सकते हैं जिसके पास आपका एक बैंक अकाउंट है, और आप इनमें से एक को बोल सकते हैं कि ऑन योर बिहाफ वो आपको ना सिर्फ आपके बिहाफ पे एक एप्लीकेशन फाइल करें बट वो इनिशियल स्टेप्स भी ले सकते हैं, यानी वो खुद आपको आपका एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। They can register you on this portal and then subsequently file an EIPO application on your behalf and make payment on your behalf. इसमें मैम आपके पास जो ये फर्स्ट EIPO है जिसमें आप ऑनलाइन जा रहे हैं और इसके बाद जो फर्दर जितने भी EIPOs आएंगे उन पे भी हम ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकेंगे? जी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। आपके सवाल के जवाब में, नो दिस इज नॉट द फर्स्ट IPO। ये चीज़ हम काफ़ी IPO से हमारे बेसिकली हमारा इंडेवर या यही है कि हम कम्प्लीटली वी वुड लाइक टू गो कम्प्लीटली डिजिटल इवेंचुअली। ये ऑब्जेक्टिव है और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा अभी इन्वेस्टर बेस अभी इतनी ब्रॉड है नहीं। तो इन द मीन टाइम आई फील के वी आर डूइंग आवर मैक्सिमम, आवर utmost to promote our EIPO solution. हमने ये लॉन्च किया था सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के IPO में, जो कि अप्रैल सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में हुआ था। तो फ्रॉम अप्रैल अभी तो इट इज़ नाउ सितंबर, सो इट हैज़ बीन मैनी मंथ्स, और हम काफ़ी अवेयरनेस सेशंस कर चुके हैं। हम सोशल मीडिया को भी बहुत एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। हम अपने लिंक्डइन पेज को, फेसबुक पेज को, अपने यूट्यूब चैनल को बहुत एक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं in order to promote, in order to market the EIPO solution। और ultimately objective यही है कि जो retail investors हैं, आप जैसे मेरे जैसे, वो इस solution की थोड़ी
they should be aware of the solution. They need to understand कि physical application भरना बहुत एक hassle process है और बहुत एक tedious process है, as opposed to, you know, sitting in the comfort of your home, going online, registering yourself, and then, you know, very easily going online, opening up your this portal, filing the application online, doing nothing, you know, कुछ buttons के click पे आपकी पूरी application भर जाएगी, आपको पूरा नाम दोबारा enter नहीं करना जैसे physical applications में करना होता है, क्योंकि आप एक टाइम अपने आप को register कर चुके हैं तो system already आपकी तमाम details जानता है, नहीं वो फॉर्म को ऑटो पॉपुलेट कर चुका होता है, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप खुद भरना शुरू करते हैं फॉर्म। तो आपको कुछ नहीं, आपको आगे की चीजें एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट ही नहीं है तो आप फैसिलिटेशन को चेक कर लें आप, और फिर you only have to enter the number of securities that you would like to purchase in an IPO, and that's it, and then you're through. A consumer number या consumer ID आपको already generate हो जाता है, self generated होता है, auto generated होता है, और आपने उसके against simply payment करनी होती है। तो very simple process, very easy process. इसकी अगर इन केस मेरी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं होती या एक्सेप्ट नहीं होती, तो जितनी भी मेरी पेमेंट है वो सेम अकाउंट में रिवर्स हो जाएगी? बिल्कुल रिफंड हो जाएगी। कितने ड्यूरेशन में रिफंड होगी? So मैंने जैसे बताया, it takes between 3 to 8 days, और maximum हमने every issuer is bound to comply with all formalities post public subscription within a period of 10 days, no more than 10 days. तो हमारे endeavors यही होते हैं कि at the earliest possible हम issuer को encourage करें कि ये जो recon का process होता है, ये जो scrutiny of applications का process होता है, इसको quickly conclude करें। और देखें ये उतनी ही जल्दी conclude होगा जितना जल्दी हमारा अपना investor base digital applications की तरफ आएगा। ये physical applications होती हैं जिनकी reconciliation, जिनकी scrutiny में time लगता है, ये online applications में नहीं होता है। So again, the answer to your question would be that if more people start switching from physical applications to e-applications, the easier and the quicker it would be to conclude the entire IPO process, and the quicker it would be for a company to get listed on the exchange. Right? चले मैम, thank you so much. It was a very nice session जितना मैंने attend किया। थैंक यू जी। कोई और सवाल होते हैं आपके तो फील फ्री, आप कभी भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। शकील साहब आपका सवाल है? जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि जब आप ये वेबिनार कर रहे हैं तो इसको जितने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की हुई है उनको आप कुछ भेजते हैं कि ऐसा वेबिनार हो रहा है या नहीं? मेरा अकाउंट एक्चुअली सीडीसी में है, मैंने कभी नहीं देखा, ये पहली दफा देख रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सीडीसी ने कभी कोई अवेयरनेस सेशन नहीं किया? नहीं, उन्होंने किया है, लेकिन जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ वेबिनार। तो इस तरह से कोई आप गैदर नहीं करते हैं सारे लोगों को कि उनको इन्फॉर्म कर दें कि इस दिन इस टाइम में वेबिनार हो रहा है तो अटेंड अच्छा, हमने वी हैव बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। हमने इसको बिल्कुल मार्केट किया है एज पार्ट ऑफ द एक्सचेंज, और मेरी मार्केटिंग टीम हैज मेड ऑल एफर्ट्स। आई बिलीव सोशल मीडिया हैज बीन वेरी एक्टिवली यूटिलाइज्ड फॉर दिस। इसके ऊपर प्रॉपर फ्लायर बना था, और जो कि हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस को यूज करते हुए, बिकॉज हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव रिटेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करना था। तो आपको पता है वी वुड लाइक टू अट्रैक्ट पीपल हु use Facebook, who use LinkedIn, who use or who go on YouTube. तो हमने इन सब मीडियम्स को यूज करके इस को प्रमोट किया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सीडीसी के अकाउंट मेंबर हैं या और भी मेंबर हैं जो करते हैं काम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनका आप एक डेटा अगर एक जगह रख लें और उनको भेज दिया करें, ईमेल कर दें, SMS करें, जो भी है, तो उनको इंफॉर्मेशन हो जाएगी इसका। एक सेकंड, आप ब्रोकर्स की बात करें? आपने ब्रोकर्स की भी बात की कि we should intimate brokers whenever we are having a session? No. Broker always they are touch with you, is no problem for them. हाँ, तो CDC की बात करें। जी।
अच्छा देखिए, एक्चुअली ठीक है, CDC को तो इनफैक्ट our counterparty does have or they do know that we are planning to have a session, but I am a little doubtful. I'm saying this on this platform, but I'm a little doubtful if they will be promoting our platform, because they themselves are offering they themselves are offering an eIPO solution, right? So basically, at the present moment, there are two electronic solutions which are being offered. One is being offered by CDC, the other one is being offered by the exchange. So hum dono, like the exchange as well as CDC, we both are making maximum efforts in order to promote our eIPO solution. और ultimately दोनों entities का objective यही है कि हम अपना retail investor base जो है वो हम बढ़ाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हमारे इन्वेस्टर्स फिजिकल एप्लीकेशंस को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस की तरफ आए, उतना बेहतर है, क्योंकि उतनी जल्दी हम अपने ये जो आईपीओ लैंडस्केप है इसको चेंज कर सकते हैं, उतना जल्दी हम डिजिटल जा सकते हैं, उतना जल्दी हम इस आईपीओ प्रोसेस को एंटायरली कंक्लूड कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि जो अभी आजकल भी जितने डिलेस होते हैं वो फिजिकल एप्लीकेशंस की वजह से होते हैं, क्योंकि उनकी स्क्रूटनी में बहुत टाइम लगता है. So with electronic applications, the recon period is very short. Doesn't take that long. अस्मा बहन, मैं इस बात पे नहीं बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ कि अगर CDC और आपके पास जो डेटा है अगर उसको गैदर कर ले एक जगह, और जो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की हुई है उनको आप भेजें कि ये इस वक्त वेबिनार हो रहा है, इस वक्त आईपीओ हो रहा है. CDC करता है. Okay, I think thank you. I think your suggestion has been noted. आप कह रहे हैं कि जब भी next time हम webinar करें तो हम अपने registered investors को जरूर एक SMS भेज दें और उनको notify कर दें कि ये session होने वाला है. तो thank you, this is a good suggestion और we've noted it. लेकिन just broadly speaking, इस session में हम अपने registered investors को भी invite कर रहे हैं ताकि हम उनको थोड़ी आगाही दे सकें how they can actually फाइल एन आईपीओ एप्लीकेशन. लेकिन ओवरऑल मैं थोड़ा ब्रॉडन करना चाह रही हूँ अपनी ऑडियंस को, और मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी मेरे पास आए जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है इस पोर्टल के ऊपर, और मैं चाहती हूँ कि अदर पीपल शुड आल्सो कम, and I'm sure a lot of people who already have opened up an account with CDC के eIPO system, if they come onto my system, they will find that my system is extremely user friendly and will actually help them file IPO applications in a very convenient format. तो मैं तो encourage कर रही हूँ हर तरह के इन्वेस्टर को, वो भी जिसने अकाउंट क्रिएट यहाँ पे किया हुआ है, वो भी जिसने अकाउंट नहीं क्रिएट किया और जो कि अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, उसका ख्वाहिशमंद है. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. मैं भी यहाँ कुवैत में लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में. काफियों को मैंने लिंक दिए हैं, तो वो देख रहे हैं, इंशाल्लाह और भी आएंगे. बहुत जबरदस्त. थैंक यू शकीब साहब, थैंक यू. आई थिंक हमारे सवाल जवाब अब खत्म हो गए. मैं इन दी एंड आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर अकाउंट नहीं है तो आप भी इस पर आकर अकाउंट ज़रूर क्रिएट करेंगे, और आप अपनी फैमिलीज में जितने आपके फैमिली के मेंबर्स हैं आप उनको इनकरेज करें कि दे शुड आल्सो create an account, they should also actively participate in IPOs, and this is the only way we can move forward, our economy can move forward, and we can grow in general. So thank you very much.